Now we will do the topic that is exchange of gases, internal respiration. Each alveolus is surrounded by tiny blood vessels called capillaries. The exchange of gases takes place between the alveoli of the lungs and the capillaries surrounding it. Each lung contains millions of alveoli. हर लंग कंटेन करता है मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई विच प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, जो प्रोड्यूस करता है एक बहुत बड़ा एरिया टू हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हेल्प करता है इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज हो सके. While inhaling, the oxygen from the alveoli diffuses into the blood in the capillaries. The carbon dioxide present in the blood, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है, also passes out, वो भी पास आउट हो जाती है of the blood into the alveolus, which is then exhaled. Alveoli are the structural units of the lungs. Alveoli हमारी क्या होती हैं? Structural units of the lungs. Now here is cellular respiration. The oxygen that enters the capillaries, जो ऑक्सीजन है वो एंटर करती है कैपिलरीज में फ्रॉम द एल्वियोलाई, कहाँ से? एल्वियोलाई से. एंटर्स द आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल्स ऑफ ब्लड. द आरबीसीज कंटेन अ प्रोटीन. आरबीसीज एक प्रोटीन कंटेन करते हैं जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, विच बाइंड्स विद द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड. और कौन सा कंपाउंड बनाता है ये? Oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin is carried through the blood to all the cells of the body. In the cells, oxygen is released from oxyhemoglobin. Cells use this oxygen. Cells ये oxygen use करते हैं by to break down glucose और sugar to form, और बनाते क्या है वो? कार्बन डाइऑक्साइड and water. During this process, इस process के दौरान एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी रिलीज होती है विच इज यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स, और वो यूज की जाती है फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स, फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स, फॉर ब्रिंगिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड सो ऑन. ग्लूकोज, यू कैन सी ओवर हेयर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन gives water plus carbon dioxide plus energy. The carbon dioxide diffuses into the blood. The blood carries it back to the lungs where it is expelled during exhalation. Now we will come to the topic that is aerobic and anaerobic respiration. Have you ever wondered what would happen if oxygen did not reach the cells in the body? हमने कभी सोचा है अगर हमें ऑक्सीजन हमारे सेल्स में अगर ना पहुंचे तो? Can energy be obtained without oxygen? क्या एनर्जी ऑब्टेन हो सकती है हमें ऑक्सीजन के बिना? Yes, in some cases, yes, हो सकती है. कुछ केसेस में एनर्जी कैन बी obtained without oxygen reaching the cells. देखो, when glucose or food is broken down in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन ब्रोक डाउन हो रहा है और क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. लिबरेट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. Carbon dioxide is liberated and water is used up for other cellular functions. Aerobic respiration is the most common type of respiration exhibited by most organisms. It is also the most efficient form of respiration. Now, food can also be broken down in the absence of oxygen. Food हमारा broken down हो सकता है अगर ऑक्सीजन वहाँ पे ना हो. उसको हम क्या बोलते हैं? Anaerobic respiration. Anaerobic respiration is exhibited in some organisms such as yeast and certain bacteria. Glucose, which gives alcohol plus carbon dioxide plus energy. ये break down हो रहा है. Anaerobic respiration takes place only for short durations. Aerobic respiration produces more energy than anaerobic respiration. Aerobic respiration प्रोड्यूस करता है ज्यादा एनर्जी. किससे? एनारोबिक रेस्पिरेशन से. नाउ द मसल सेल्स इन आवर बॉडी normally carry out aerobic respiration.
But when we run fast or exercise vigorously, the muscle cells work faster and require more energy. जब हम तेज दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल सेल्स हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं और उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है. To meet this energy demand, the muscle cells switch over to anaerobic respiration. तो ये इस एनर्जी डिमांड को compete करने के लिए हमारे मसल सेल स्विच कर जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पे. बट इन दिस केस इंस्टेड ऑफ एल्कोहल लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड. द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड. अब ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज ये प्रोड्यूस कर रहा है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. नाउ वी विल कम टू द टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. Plants also respire by taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Leaves of most plants have tiny pores called stomata. Now, stomata bring about the exchange of oxygen and carbon dioxide in plant cells. Guard cells on either side of the stomata regulate their opening and closing. जो guard cells होते हैं on either side of the stomata, वो क्या regulate करते हैं? उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग. अब ये देख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और क्या क्या बन रहा है उससे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. सो द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स इज मच स्लोअर दैन इन एनिमल्स. जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में वो बहुत हल्का होता है एनिमल्स के कंपेरेटिवली. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is used by the organism. The rest is lost as heat. Now, like all other living cells of plants, the root cells also need to breathe to produce energy. The spaces between the soil particles, जो spaces होते हैं between the soil particles, trap the air. वो air को trap करते हैं and this air is utilized by the plant roots. और ये air utilize करी जाती है प्लांट की रूट्स के. ड्यू टू दिस रीजन फार्मर्स एंड गार्डनर्स फ्रीक्वेंटली टर्न अराउंड द सॉइल सो दैट फ्रेश एयर पार्टिकल्स कैन गेट ट्रैप्ड इन द सॉइल. अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में. फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं एंड लिबरेट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर. और रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है विच ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द यूसेज ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. नाउ फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. और रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या होती है? ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ऑल द टाइम एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. इसमें स्ट्रक्चर्स क्या इन्वॉल्व होते हैं हमारी फोटोसिंथेसिस में? लीव्स, स्टेम एंड रूट्स. और रेस्पिरेशन में क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे? स्टोमेटा, रूट्स, lenticels of stem bark, general body surfaces through the spaces between the cells. So this is all about this chapter. I hope you all understand it. Thank you.